Hey guys, welcome back to the Chem-centric YouTube channel, and I am going to continue with the topic aromaticity. So this is a lecture 3 video of it. So far हमने discuss कर लिया था कि aromaticity कैसे arise हुई and what are the conditions to check whether a compound is aromatic, non-aromatic or anti-aromatic. And in the lecture 2 video, we discussed some important examples of cyclic compounds varying from a cycle ring of 3-membered till 5-membered ring. So in this lecture video, I am continuing with 6-membered system. So let us see some examples for 6-membered systems. As you can see, this is our benzene, right? So if I have to check the aromaticity in it, you can see that it is cyclic. It is planar because all the carbons are sp2 hybridized. I guess now you are comfortable with checking whether a carbon is sp2 or not, right? Cyclic resonance is there as the pi electrons can move in a whole cycle, right? 4n plus 2 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग देखें तो ये 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, राइट? 3 pi bonds प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ pi इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6, और उसके अकॉर्डिंग अगर n की वैल्यू देखें इट कम्स आउट टू बी 1. So Huckel said that if n comes out to be a whole number, then we can say that the compound is aromatic or anti-aromatic. Aromatic in case of 4n plus 2 rule, and if it follows 4n pi electron rule, then it comes out to be anti-aromatic, right? Here, as you can see, now one of the carbon atom is replaced by nitrogen bearing a lone pair. So you must have a knowledge of it that this lone pair is a localized lone pair. And the hybridization of this nitrogen is sp2 only, right? So अगर मैं देखूँ तो cyclic ये है, planar भी होगा क्योंकि सारे atoms sp2 hybridized है. Cyclic resonance can occur between the pi bonds, right? And pi 4n plus 2 electron के rule के अकॉर्डिंग देखें तो कितना आएगा पाई इलेक्ट्रॉन 6 pi electron. We will not count this lone pair because this is localized. Okay, so n value again comes out to be 1. Therefore the system is aromatic. ये वाले जो कंपाउंड है इसको हम pyridine के नाम से जानते हैं, राइट? नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में अगर आप देखो तो क्या करा हुआ है, साइक्लिक ये है, लेकिन अगर प्लेनर की बात करें तो ये वाला कार्बन जो है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. देयरफॉर ये सिस्टम नॉन प्लेनर होगा. और फिर साइक्लिक रेजोनेंस तो हम क्या ही देखेंगे, इफ वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड देन वी रिगार्ड इट एज नॉन एरोमेटिक इन नेचर. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. हियर यू कैन सी दैट ऑल द सिस्टम्स आर साइक्लिक, राइट? प्लेनारिटी की अगर बात करें तो ये वाला कार्बन हमें दिख रहा है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. देयरफॉर ये प्लेनर नहीं है, इट इज नॉन प्लेनर. एंड ओवरऑल ये हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, राइट? ये वाला देख लेते हैं. अब यहाँ पे ये दोनों ही लोन पेयर जो नाइट्रोजन के हैं दे आर लोकलाइज्ड. Since they are localized, they won't take part in resonance and the hybridization of both the nitrogen is sp2. Therefore, this system is also planar and cyclic resonance can occur. 4n plus 2 अगर देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 6 pi इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी और ये सिस्टम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक. ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसको देखो तो साइक्लिक तो दिख रहा है, लेकिन प्लेनारिटी चेक करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बोरोन है इट हैज एन एम्प्टी 2p ऑर्बिटल, राइट? सो दिस लोन पेयर कैन डोनेट इन दिस एम्प्टी ऑर्बिटल. सिमिलरली यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी बैक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है? तो उसकी वजह से सारे ही एटम्स क्या हो जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ठीक है? अगर आप चेक करो तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर इसका डीलोकलाइज होगा और एक लोन पेयर जो प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, लोकलाइज, ठीक है? उसकी वजह से ये सारे ऑक्सीजन जो है उनकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी. तो ओवरऑल ये सिस्टम प्लेनर हो जाएगा. साइक्लिक रेजोनेंस है इसमें. और अगर हक्कल रूल के अकॉर्डिंग देखें तो 4n plus 2 बराबर 6 pi इलेक्ट्रॉन लिखेंगे. n की वैल्यू 1 आ रही है विच इज अ होल नंबर. देयरफॉर
the system is aromatic. So let us see this example. This molecule is called as benzene, and this is very important from examination point of view, as you will find the type of questions related to hybridization, type of overlapping, whether this molecule is aromatic, anti-aromatic or non-aromatic. Okay, so let us try to understand this, and there is a possibility that you might choose a wrong answer, so better you understand it here. So as you can see, these highlighted carbons, these contains a triple bond, right? So जैसी हमें नॉलेज पता है कि अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो जो कार्बन्स हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड हम बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं, उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 180 डिग्री. ठीक है, तो अगर मैं सोचूं कि ये वाले कार्बन्स भी sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, दैट मीन्स इनके बीच का बॉन्ड एंगल 180 होना चाहिए. बट since it is a cyclic system, bond angle cannot approach 180 degree. So ये दूसरा पाई बॉन्ड है, ये बना कैसे होता है आप ये समझो. जो बेंजीन रिंग है उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग वन पाई बॉन्ड है वो तो pp ओवरलैप से बन जाते हैं, ठीक है, और जो दूसरा पाई बॉन्ड था एक्स्ट्रा वो बनता है sp2 साइडवेज ओवरलैप से. ठीक है, सो अगर कोई मुझे पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इन हाइलाइटेड कार्बन की, सो इट विल बी sp2 नॉट sp. टाइप ऑफ ओवरलैप अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, एक तो pp ओवरलैप से बना हुआ है पाई बॉन्ड और एक sp2 ओवरलैप से बना हुआ है पाई बॉन्ड. ठीक है, और अगर हम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक की बात करें तो ये सिस्टम साइक्लिक है और ये सिस्टम प्लेनर है क्योंकि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. और 4n+2 की वैल्यू अगर हम देखें तो इट कम्स आउट टू बी 6 पाई इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये वाला हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि जब हम पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, राइट. सो ओवरऑल 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, n की वैल्यू कम्स आउट टू बी 1. देयरफॉर बेंजाइन इज एरोमेटिक इन नेचर. ओके, now let's switch to 7-membered systems, and this is very important because from 7-membered onwards the compounds that comes out to be anti-aromatic, they try to switch to non-aromatic system. Why? Because you must know the stability order of it. If I see the stability of these cyclic compounds, then aromatic compounds are considered to be more stable. Then comes non-aromatic, and then comes anti-aromatic. So 7-membered onwards हमें ध्यान क्या रखना है, जो भी systems anti-aromatic आ रहे होंगे they tend to shift to non-aromatic because they will gain stability, right. So ये वाला example अब हम देखते हैं. It is cyclic, it is planar because all the carbons are sp2 hybridized. Cyclic resonance can happen, right. तो वो भी हो सकती है. हकल रूल के अकॉर्डिंग देखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, तो n की वैल्यू कम्स आउट टू बी 1 और दिस इज एक्सेप्टेड, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा. ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल देखते हैं. अगर हम देखें इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, राइट. सो साइक्लिक एंड प्लेनर इट इज एंड साइक्लिक रेजोनेंस विल हैपन. नाउ if I count the number of pi electrons, so this is an 8 pi electron system. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 4n pi electron system के अंडर आएगा. ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू होल नंबर आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था ये. ठीक है, बट दिस इज नॉट एंटी एरोमेटिक, दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक. कैसे होगा देखो, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज बियरिंग कार्बन है इट गोज आउट ऑफ प्लेन. ठीक है, सो दिस कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज goes out of plane of the ring, due to which it loses its planarity and the corresponding compounds become non-aromatic.
So guys, please be cautious while dealing 7-membered system onwards because जो आपको एंटी एरोमेटिक दिखेगा ड्यू टू लॉस ऑफ प्लेनैरिटी वो नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. और एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे ये वाला एग्जांपल है, तो इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड. इट इज प्लेनर. जो ये बोरॉन है इसके पास Mt2p ऑर्बिटल है, सो इट कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस. तो साइक्लिक रेजोनेंस भी हो सकती है यहाँ पे. और हकल रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 4n+2 6 के बराबर हो जाएगा, n की वैल्यू 1 आ जाएगी और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला कंपाउंड. अब इसमें क्या है, साइक्लिक ये है. प्लेनर के लिए चेक कर लेते हैं. ये वाला जो लोन पेयर है इट इज डीलोकलाइज्ड. ठीक है, अगर ये डीलोकलाइज्ड है दैट मींस ये वाला जो नाइट्रोजन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. आप सोचोगे है ना, रेजोनेंस भी सोच लोगे कि रेजोनेंस भी हो रही है और 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक आ जाएगा. राइट, but this is not anti-aromatic. You must now focus that यहाँ पे loss of planarity हो जाएगी and जिसकी वजह से this anti-aromatic shifts to non-aromatic. Let's see this example, and this is a very important example when it comes to 7-membered systems. So I won't repeat again and again about cyclic or cyclic resonance planarity. I guess now you are comfortable in checking that. What important thing you have to note it here is that as you can see, this represents a carbene carbon and this is a lone pair. It is like a lone pair of electron, right? तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखूं तो इट कम्स आउट टू बी 8 पाई इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो यू माइट थिंक दैट दिस सिस्टम इज एंटी एरोमेटिक, बट दिस इज नॉट. दिस सिस्टम इज एरोमेटिक इन नेचर. कैसे होता है, लेट मी एक्सप्लेन इट हेयर. एज यू कैन सी ये वाला जो कार्बीन है इट इज अ सिंगलेट कार्बीन. तो अगर मैं कार्बन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखूं इन वैलेंस शेल, इट इज 2s2 2p2. सो आई हैव फिल्ड द इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस. एक्साइटेड स्टेट अगर लिखूं तो ये वाला जो s इलेक्ट्रॉन है इट गेट्स एक्साइटेड टू द Mt2p ऑर्बिटल. तो ये मेरी एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी. ठीक है, नाउ इसको हाइब्रिडाइजेशन अगर अंडरगो करनी है तो 3 orbitals participate in mixing due to which the carbon is sp2 hybridized और 3 sp2 hybrid orbital मिलते हैं. और ये जो लोन पेयर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है it is present in sp2 hybrid orbital, right? और एक vacant 2p orbital बच जाता है. I have represented this molecule here. यही होगा. ये वाला जो लोन पेयर है ये किस में प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. ठीक है, अब जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ये वो वाले जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज या जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो p ऑर्बिटल में होना चाहिए. तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि ये वाला जो Mt2p ऑर्बिटल है इट पार्टिसिपेट्स इन डीलोकलाइजेशन. ठीक है, तो ओवरऑल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. और उसके अकॉर्डिंग 4n+2 में पुट करेंगे 6, तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी और इसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है इट कम्स आउट टू बी एरोमेटिक. ठीक है, I hope this thing you have got is why this 2p orbital is participating in resonance, because the prime condition for resonance is कि p orbital must be there. ठीक है, तो ये इसके साथ ओवरलैप कर पाएगा, है ना. तो दैट इज वाई ये पार्टिसिपेट करता है इंस्टेड ऑफ ये जो लोन पेयर हमें दिख रहा है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल नॉट 2p हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है, 8 मेंबर्ड सिस्टम्स की केस लेते हैं. तो ये वाला जो सिस्टम है यहाँ पे हमें दिख रहा है 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, उसके अकॉर्डिंग ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, राइट. लेकिन अब आपको ध्यान रखना है 7 मेंबर्ड ऑनवर्ड्स जो एंटी एरोमेटिक सिस्टम होते हैं दे टेंड्स टू शिफ्ट टूवर्ड्स नॉन एरोमेटिक. ठीक है, नॉन एरोमेटिक क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये लॉस ऑफ प्लेनैरिटी हो जाती है.
तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है इट इज लाइक दिस. इसको टब शेप भी कहते हैं. ठीक है. सो यू हैव टू कीप दिस important thing in your mind while dealing questions. ये वाला देखते हैं तो all are planar cyclic हैं. ठीक है. और 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा. ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ से 4, टोटल हो जाएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो 4n+2 में अगर हम पुट करें 10 की वैल्यू, तो n की वैल्यू कम्स आउट टू बी 2 विच इज एन एक्सेप्टेड वैल्यू बिकॉज इट इज अ होल नंबर. तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक. Let us see some examples for 9-membered systems. Now I guess you have got quite comfortable in predicting about the cyclic planarity of a molecule. So I am now directly counting the number of pi electrons here. So यहाँ पे अगर आप देखो तो 8 pi electron system है. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग it must have been anti-aromatic. But this is not anti-aromatic. It goes to non-aromatic system. ठीक है. ये वाला सिस्टम देखते हैं. So this negative charge is delocalized. So it will be counted as pi electrons. तो यहाँ पे total number of pi electrons कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 pi bonds है तो 8 pi electron उसके plus negative charge contributes 2 pi electrons. So total comes out to be 10 pi electrons. If I substitute this in 4n+2 formula, then n comes out to be 2. And since it is a whole number, therefore this molecule is aromatic. Lastly, 10-membered systems देख लेते हैं. और ये example बहुत important है from examination point of view, because you can see that the number of pi electrons कितने होंगे, 5 pi bonds है. ठीक है. तो कितने हो जाएंगे, 10 pi electrons हो जाएंगे. उसके अकॉर्डिंग अगर हम 4n+2 में पुट करें इसको, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी. एंड वी माइट थिंक दैट दिस सिस्टम इज व्हाट, एरोमेटिक. ठीक है. बट ये एरोमेटिक नहीं होता. दिस सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक. व्हाई, लेट मी एक्सप्लेन विद द स्ट्रक्चर. ये जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है. अब असल में यहाँ पे होता क्या है कि ये वाले जो हाइड्रोजन्स होते हैं, these hydrogen pose steric repulsion. ठीक है. और steric repulsion होने की वजह से क्या होता है कि ये वाले कार्बन के जो p ऑर्बिटल्स हैं, these p orbitals experiences distortion. और उसकी वजह से प्लेनारिटी लूज हो जाती है और ये नॉन एरोमेटिक बन जाता है. In order to get back the p orbital in plane, we introduce a bridging atom like carbon, oxygen और nitrogen type. ठीक है. तो होता क्या है कि p orbital comes back in plane. So due to this क्या होता है कि यहाँ पे ये दोबारा एरोमेटिक हो जाता है सिस्टम. कैसे हुआ, क्योंकि ये सारे सिस्टम 10 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. तो कॉरेस्पॉन्डिंग 4n+2 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 10 एंड n कम्स आउट टू बी 2. एंड सिंस द p ऑर्बिटल जो डिस्टॉर्टेड थे वो वापस प्लेन में आ जाते हैं. ड्यू टू दिस these molecules are aromatic. ठीक है. So guys, I hope you are clear and through with all the examples that I have discussed today. And we have discussed all the cyclic compounds ranging from 3-membered to 10-membered. And just I will continue this chapter in my next lecture video. So I please like, share and subscribe my channel and stay tuned and hit the bell icon if you want the further notifications related to it. So thank you. Bye.